Hello and good evening, everyone. Welcome back to Learning Session. This is Rupali, and if you are preparing for AML and KYC exams, which is covered under certification course, then do watch this video till end because in this video we are covering important topic and important chapter in conceptual manner. So stay tuned till the end. And if you want to enroll AML and KYC course from Learning Session, then you have to download Android application from Google Play Store, which is IIBF Learning Center app. And if you are iOS user, then you have to download My Institute app and use the organization code, which is GEGKT, as you can see on the screen. So hurry up guys, do enroll now, and you can also join our Telegram channel. So in this channel, you will be getting latest updates, the latest notification regarding all the certification courses, and yes, you will be getting questionnaire in the form of polls and free PDF notes of important topic of KYC and AML codes. So do join with us, and here is exciting offer which is flat 82% off on our all listed pack. Just you have to apply coupon code exams, as you can see on the screen. So don't miss the chance, just grab the opportunity to enroll the AML and KYC course from Learning Session. So after enrollment of course, the premium member will be getting mock test, conceptual videos in Hindi and English mixed language, recorded live lectures according to the latest syllabus, and yes, free e-PDF notes which is complimentary given by us. To access them, you just have to join our Telegram channel. So the link of the app and the Telegram channel is in the description box below. Do check it now. And you can also visit our website, which is iibf.info. And if you have any query or doubts related to course details, you just have to contact us. Number आपको description box में मिल जाएगा. And if you are new on our channel, then do subscribe our channel. Let's start today's video. तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं AML एंड CFT की लेजिस्लेशन मेजर कंट्रीज में क्या क्या है एंड इंडिया में किस तरह से है. ठीक है. सो AML क्या होता है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, राइट. एंड CFT इज व्हाट कॉम्बैक्टिंग फाइनेंशियल टेररिज्म. तो उसकी किस किस तरह से लेजिस्लेशन दी गई है, क्या क्या प्रोविजंस हैं. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज AML लेजिस्लेशन एट नेशनल लेवल. नेशनल लेवल पे किस तरह से है. सो आपको पता ही होगा कि हर एक जो कंट्रीज होती हैं उनका अलग अलग फैक्टर्स होती हैं. ठीक है. उनके अलग अलग लेजिस्लेशन होती हैं. ठीक है. गाइडलाइंस अलग अलग से होती हैं. उनकी इकोनॉमिक सिस्टम अलग से होता है. उनका पॉलिटिकल सिस्टम अलग से होता है. ठीक है. तो सब चीज़ों को मेजर करके, सब चीज़ों को यहाँ पे देख के, ठीक है, अच्छे से समझ के गाइडलाइंस बनाई गई हैं. ठीक है. हर कंट्री की अलग अलग होती है. ठीक है. और डिपेंड अपॉन की सोसाइटी किस तरह से, उनकी पॉलिटिक्स किस तरह से, उनका इकोनॉमिक्स किस तरह से. ठीक है. तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं. ठीक है. सारे फैक्टर्स यहाँ पे इफेक्ट करते हैं सो डैट वो गाइडलाइंस बना सके. ठीक है. अब देखो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की अलग होंगी. ठीक है. गाइडलाइंस हैं, राइट. एंड अगर हम बात करते हैं किसी और कंट्री की, ठीक है, दुबई की कंट्री की बात करें तो वहाँ के अलग होंगे रूल्स एंड रेगुलेशन, उनकी पनिशमेंट अलग होंगी. ठीक है. तो इसी वजह से क्या है, हर एक नेशनल लेवल पे अलग अलग तरह की यहाँ पे गाइडलाइंस बनाई जाती हैं. While the most of the nation of the world have subscribed to the principal charter guidelines, सभी ने अपने अपने तरीके से गाइडलाइंस बनाई है. ठीक है. प्रिंसिपल्स बनाए हैं. ठीक है. जो कि हर एक इंटरनेशनल बॉडी से अलग होते हैं, उनकी लेजिस्लेशन से अलग होती हैं. ठीक है. नेशनल लेवल पे अगर हम बात करते हैं. ठीक है. तो इनको डिपेंड किस पे करता है, उनकी इकोनॉमी कैसी है, उनकी पॉलिटिकल कैसा है. ठीक है. उनकी सोसाइटी किस तरह से, ये सब डिपेंड करता है. ठीक है. उनके प्रैक्टिसेस एंड गाइडलाइंस को बनाने के लिए, राइट. सो फर्स्ट वन चलते हैं हम काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज द CE. ठीक है. तो काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन बनाया गया था जिसके अंदर काफ़ी सारे दो आई थिंक हैं, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. उसके बाद हम अमेरिका का देखेंगे, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में. तो यूरोप कन्वेंशन यहाँ पे बनाया गया था जिसके अंदर 1949 के अंदर उसको सेटअप किया गया था. और तब उस टाइम पे 46 मेंबर जो 46 मेंबर्स थे, स्टेट मेंबर्स थे. ठीक है. स्टेट मेंबर्स इन द वो इज व्हाट कि वहाँ पे 46 स्टेट्स थे. ठीक है. जो कि एज अ मेंबर बने हुए थे. ठीक है. एंड मोर ओवर उन्होंने कम से कम 200 कन्वेंशन पब्लिश की थी. ठीक है. उन्होंने कम से कम जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है, उसके खिलाफ जो पब्लिश डॉक्यूमेंट्स हैं वो कम से कम 200 यहाँ पे पब्लिश की थी. ठीक है. कवरिंग वेरियस सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस, की ग्लोबली इंपॉर्टेंस क्या क्या है. ठीक है. कौन कौन से ऐसे सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स प्रेफर करते हैं. ठीक है. ये सब चीज़ें उन्होंने कम से कम 200 पब्लिश की थी. इज इट क्लियर. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज यूरोपियन कन्वेंशन ऑन द सप्रेशन ऑफ द टेररिज्म, दैट इज इस्टेब्लिश अंडर 1979. तो ये कन्वेंशन को क्यों बनाया गया है, टू हैव द बनिशमेंट ऑफ द पर्सन्स हैविंग कमिटमेंट एक्ट्स ऑफ टेररिज्म. तो जो भी
पर्सन है जो इन जो भी जो पर्सन्स हैं, यानी कि जो PML के सॉरी AML के अंडर आते हैं, ठीक है, उनके साथ जो इंक्लूड किए जाते हैं पर्सन्स को, ठीक है, उनको पनिश करने के लिए ये कन्वेंशन बनाया गया है इन यूरोप, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, जो भी पर्सन, लेट्स सपोज कि अगर इंडिया का पर्सन है, ठीक है, इंडिया का पर्सन है, वो दुबई जाके कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है, तो दुबई वाले क्या करेंगे, इंडिया में वापस भेज देंगे, ठीक है। दिस कन्वेंशन सॉट टू फैसिलिटेट एक्स्ट्राडिक्शन ऑफ पर्सन हैविंग कमिटमेंट एक्ट्स ऑफ टेरर। अगर वो किसी भी तरह से टेररिज्म की यहाँ पे एक्टमेंट करता है, तो या तो उसको एट अ टाइम पनिश कर देंगे या फिर उसको वापस अपनी कंट्री में भेजा जाएगा, ठीक है। सो इट लिस्ट द ऑफेंसेस शुड नॉट बी कंसीडर एज पॉलिटिकल ऑफेंसेस, नहीं कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। एंड दिस कन्वेंशन अमेंडेड टू द डीपोलिटिलाइज्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी जो पर्सन होता है, ठीक है, वो जो पॉलिटिकल होती है, ठीक है, जो भी राजनीति होती है, अगर उसके खिलाफ जाके वो कोई भी मूवमेंट करता है कि उसके खिलाफ जाके टेररिज्म में करता है, तो उसको भी यहाँ पे ऑफेंसेस, देखो अब यहाँ पे पॉलिटिकल ऑफेंसेस को वैसे कंसीडर नहीं किया जाता, यूरोप में पॉलिटिकल ऑफेंसेस को क्रिएट नहीं किया जाता। अगर इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं, ठीक है, उनको भी वही पनिशमेंट मिलती है जो आम पर्सन के लिए रखी गई है, वही गाइडलाइंस उनको प्रोवाइड की जाएगी जो दूसरे पर्सन के लिए गाइडेंस प्रोवाइड की गई है, ठीक है, सेम एज पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ठीक है। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है, यूरोप में कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। दिस कन्वेंशन वाज अमेंडेड टू डीपोलिटिलाइज, ठीक है, 2003 के बाद उसको अमेंड किया गया था, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ लॉन्ड्रिंग, सर्च, सीजर एंड कन्फिस्केशन ऑफ द प्रोसीड फ्रॉम क्राइम, 1993 में इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। तो एक ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसके अंदर वो क्या करते थे, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग थी, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, वो सब चीज़ें कवर होती थी। देखो काफ़ी सारे कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, काफ़ी सारी यूरोप में कंट्रीज़ हैं एंड मोर ओवर स्टेट्स हैं, तो उन सबको यहाँ पे इकट्ठा करके, ठीक है, ट्रीटी बनाई गई। ट्रीटी बनाते हैं कि हम सब यहाँ पे ट्रीटी लेते हैं कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग है या टेररिज्म फाइनेंसिंग के जो भी इलीगल सोर्सेज हैं या फंड्स हैं, उसको हमने कंट्रोल करना है एंड मोर ओवर प्रिवेंट भी करना है, ठीक है, जिसके अंदर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की हेल्प दी जाती है। फॉर एग्जांपल किस तरह से दी जाएगी कि एविडेंस को किस तरह से निकाला जा सकता है, इन्फॉर्मेशन को किस तरह से ट्रांसफर करवाया जा सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक विदाउट रिक्वेस्ट के बिना, ठीक है, और टाइम भी वेस्ट ना हो, राइट। सो कॉमन इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पे टेक्निक्स बताई जाती हैं एंड बैंक की सिक्रेसी को भी यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ठीक है। सो मोर ओवर अगर कोई भी बैंक अकाउंट जिससे हमें पता लगता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है या फिर ये टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, तो उस जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसको फ्रीज किया जा सकता है, ठीक है, या फिर उस जो ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा एसेट जो कि मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेट करती है या उस एक्टिविटी के साथ कनेक्टेड है, तो उसको भी सीज किया जाता है, ठीक है, उसको फ्रीज किया जाएगा, उसको जब्त किया जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मेजर टू कंसिफिकेट द प्रोसीजर ऑफ क्राइम एनफोर्समेंट बाय द रिक्वेस्ट स्टेट ऑफ द कन्फिस्केशन ऑर्डर मेड अब्रॉड। तो यहाँ पे ये बोला गया कि दूसरे स्टेट्स, अब देखो ये पता लग रहा है कि दुबई में कोई चीज़ हुई है, ठीक है, जैसे सपोज कि हम यूरोप की बात नहीं करें, ठीक है, अभी हम बाहर आ जाते हैं, उसी कंट्रीज के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इंडिया एंड दुबई है, ठीक है। तो दुबई में किसी भी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम हो जाता है, ठीक है, पहले उसको देखा जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे स्टेट में, दूसरे अब्रॉड में यहाँ पे रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है, कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो हम इसके ऊपर इन्फोर्समेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिवेंशन करना और कंट्रोल करना मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग के ऊपर, तो इस वजह अगर उस पर कंट्रोल करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, तभी जाके एक सक्सेसफुल हमारा मेजर्स बन सकता है, तभी जाके सक्सेसफुल हम उसको ईजिली हम खत्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहे थे हम, यूरोप के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पे काफ़ी सारे एक्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंडिया के अंदर PML बनाया गया, आपको पता होगा इंडिया के अंदर PML बनाया गया। PML इज व्हाट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 जिसको बोला जाता है, अमेंडमेंट 2005 में हुई थी, राइट। सो इस केस में इंडिया के अंदर PML है, ठीक है। तो अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है AML एंड CFT के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्ट कौन कौन से हैं, द बैंक सिक्रेसी एक्ट 1970 एंड USA पैट्रियट, यहाँ पे दो तरह के बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट बनाए गए थे, ठीक है। इसके अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है
वो BSA है, यानी कि बैंक सीक्रेसी एक्ट है, ठीक है, जिसको BSA बोला जाता है। 1970 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एंड इसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कि रिकॉर्ड को सेफली रिटेन करके रखना है, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल का हो, चाहे वो बैंक का हो, या फिर किसी सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ठीक है, किसी आपको मैंने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में भी बताया होगा कि यहाँ पे दो तरह की रिकॉर्ड कीपिंग होती है। एक होती है कि किस तरह से वो जो CDD है, यानी कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस है, वो जब एंड हो जाता है ट्रांजेक्शन, जब ट्रांजेक्शन एंड हो जाती है उसके तब वहाँ से लेके कम से कम 5 साल तक उसको रिकॉर्ड में रखना होता है। एंड मोर ओवर जो ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस होती हैं उनके लिए रिकॉर्ड कितनी होती है, 5 साल तक ही होती है, जब से वो ट्रांजेक्शन की डेट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो दोनों के लिए ट्रांजेक्शन का क्या है, 5 साल तक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो उस रिकॉर्ड को यहाँ पे रखना होता है, कौन रखेगा, या तो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है, लेकिन ये सीक्रेसी में रखना होता है, ठीक है, एंड बैंक एंड कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो ये हेल्प करता है कि करेंसी एंड मॉनेटरी जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो किस तरह से फ्लो हो रहे हैं, कि क्या उनकी मूवमेंट्स हो रही है, कैसे वो यूनाइटेड स्टेट्स से अंदर आ रहे हैं, कैसे बाहर जा रहे हैं, ठीक है, एंड कौन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कितने डिपॉजिट करवा रहा है, ये बैंक सीक्रेसी एक्ट के अंदर देखा जाता है, ठीक है। फॉर बैंक्स रिपोर्टिंग KYC एंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड मेंटेन यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है, KYC को यहाँ पे मेंटेन करना एंड रिपोर्टिंग किस तरह से करनी है एंड ट्रांजेक्शन को किस तरह से मेंटेन करना है, ये सब बैंक सीक्रेसी एक्ट BSA के अंदर देखा जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट, जो कि 1986 के अंदर इसको कंसिडर किया गया था। सो इस केस में क्या है, फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एज अ फेडरल क्राइम, तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को एज अ फेडरल क्राइम माना जाता है, ठीक है। देखो अब काफ़ी सारी डेफिनेशन अलग अलग कंट्रीज के अंदर सबके अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, राइट। सो इस केस में इसकी डेफिनेशन क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग को, ठीक है, किसी भी तरह से अगर ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, जो भी इलीगल सोर्सेज होंगे उसको फेडरल क्राइम माना जाएगा, ठीक है। एंड मोर ओवर जो भी स्ट्रक्चरिंग ट्रांजेक्शन होती होंगी उनको प्रोहिबिट करते हैं, एंड जो भी क्रिमिनल एंड जो सिविल फॉरफीचर्स होते हैं उनको भी यहाँ पे देखा जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन एंटी ड्रग अब्यूज एक्ट, जो कि 1988 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, सो डैट हम क्या कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एंड TF यानी कि टेररिज्म फाइनेंसिंग को हम बूस्ट कर सकें, यानी कि उसके जो लॉज हैं, बाकी जो लॉज हैं उसके प्रोविजन को हम बूस्ट कर सकें, इसीलिए एंटी ड्रग अब्यूज एक्ट को भी लाया गया था, ठीक है। इसके अंदर क्या था, जो भी देखो डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन यहाँ पे क्या बताती थी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, कि जो भी इलीगल सोर्सेज से पैसा आएगा, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल इलीगल सोर्सेज से पैसे देते हैं या खरीदते पैसे ट्रांसफर करते हैं उनको ही यहाँ पे क्या किया जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर पनिश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, कोई भी ऐसा बिजनेसमैन जो कि कार डीलर हो सकता है, रियल इस्टेट डीलर हो सकता है, किसी भी जिसका नेटवर्थ ज़्यादा हो, ठीक है, जिसका नेटवर्थ ज़्यादा हो, तो उनको भी एंटी ड्रग अब्यूज़ एक्ट के अंदर देखा जाएगा, उनकी रिपोर्टिंग ली जाएगी, ठीक है। एंड मोर ओवर अगर वो मनी इंस्ट्रूमेंट्स को $3000 से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो भी यहाँ पे पकड़े जाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज एनजीओ वेल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 1992 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन यहाँ पे फोकस किस पे होता है, अंदर BSA जो कि बैंक सीक्रेसी एक्ट है उसको स्ट्रेंथन करता है, ठीक है, मतलब उसको और मजबूत बनाता है, ठीक है। इसके अंदर और कोई काफ़ी सारे मेजर्स लेके आया गया है, इसमें काफ़ी सारे लॉज लेके आए गए जिससे कि BSA को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। तो BSA को जो भी जो BSA के BSA के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी उसको वोयलेट करता है, ठीक है, उसके लिए काफ़ी सारे सेंक्शंस यहाँ पे लाए गए हैं, ठीक है। एंड जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट्स होती है वो भी यहाँ पे देखी जाती है, वेरिफिकेशन की जाती है, रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है, जो भी वायर ट्रांसफर के थ्रू होता है, राइट। एंड बैंक सीक्रेसी एक्ट एडवाइजरी ग्रुप यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं BSAAG, ठीक है। BSAAG इज व्हाट की उनके लिए ग्रुप बनाया गया है, जो कि ये ग्रुप में कमेटी में मैं अपनी यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज मनी लॉन्ड्रिंग सप्रेशन एक्ट 1994 के अंदर बनाया गया था, ठीक है। सो इस एक्ट के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारा का सारा मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए ही है, ठीक है। सो अब इसके अंदर क्या है, जितनी भी बैंकिंग एजेंसीज हैं वो क्या काम करती हैं कि जो भी अब जो जैसे आपको पता है, ठीक है, लेट्स सपोज कि आप किसी विलेजेस के साइड रह रहे हो, ठीक है, सो बहुत रूरल एरियाज में रह रहे हो, आपको पता नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, एंड आप उससे किस तरह से बच सकते
है। तो उसके लिए AML के लिए, ठीक है, यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, ठीक है, लोगों को बताया जाता है कि AML होता क्या है, आप किस तरह से उससे अवेयर रह सकते हो। तो इस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, कुछ ऐसी एजेंसीज इसके अंडर बनाई गई हैं, ठीक है। सो बैंकिंग एजेंसीज टू इनहांस द प्रोसीजर फॉर रेफरिंग टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, तो यहाँ पे कुछ एजेंसीज बनाई गई हैं सो डैट उसको इन्फोर्स कर सकें, ठीक है, जितने भी एक्शंस यहाँ पे होते हैं, जितने भी प्रोसीजर होते हैं, उसको इन्फोर्स कर सकें, यहाँ पे कुछ इस तरह की एजेंसीज बनाई गई हैं। एंड मनी सर्विसेज बिजनेस जो भी करना चाहता है उसकी रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है, ठीक है, अगर वो ऑपरेट होता है, ठीक है, उसको फेडरल क्राइम माना जाएगा। जो भी MSB अगर अनरजिस्टर्ड काम करती है उस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, तो उस केस में यहाँ पे उसको फेडरल क्राइम माना जाएगा अगर वो अनरजिस्टर्ड होती है, ठीक है। अगर आपने रजिस्टर करवानी है तो इस एक्ट के अंदर जाके ही आपने रजिस्टर करवाना होगा अगर वो मनी सर्विसेज बिजनेस है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट इज मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग क्राइम स्ट्रेटजीज एक्ट। तो मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक्ट लाया गया है, ठीक है। सो इसके अंदर बैंकिंग एजेंसी, सेम इसमें भी यही होगा कि बैंकिंग एजेंसीज लाई गई हैं, राइट। एंड मोर ओवर AML ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है फॉर द एग्जामिनर्स, जो भी एग्जाम मतलब जो सुपरवाइज करते हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। एंड मोर ओवर ये MLFTs के लिए जो भी अलग से जोन्स एंड बिजनेसेस बनाए गए हैं सो डैट इन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज यूनाइटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग अमेरिका बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट टूल्स रिक्वायर्ड टू इंटरसेप्ट एंड ऑब्स्ट्रक्ट। तो अब यहाँ पे ये बोला गया है जो भी यूनाइटेड जो स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर अगर जो भी उनको टूल्स चाहिए होती हैं, टेक्निक्स चाहिए होती हैं तो उन एनालाइज करने के लिए या फिर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस एक्ट के अंदर लाया गया है, ठीक है। 2001 के अंदर आता है ये, राइट, जिसको USA पैट्रोइट भी बोला जाता है। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, बैंक सीक्रेसी एक्ट एंड USA पैट्रोइट एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं इस चैप्टर में से, राइट। सो इस केस में क्या है, क्रिमिनलाइज्ड द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को किस तरह से क्रिमिनलाइज बनाना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर क्या होता है? कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर आपको मैंने बताया था KYC का, ये क्या है, फर्स्ट पिलर है, ठीक है। CAP रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो CIP का मतलब ये होता है कस्टमर की जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर होता है उसको आइडेंटिफाई करना, क्या ये सही है कस्टमर, ठीक है, उसको अब ये चीज़ अब जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, फॉर द KYC, ठीक है, KYC की उन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, तो उसको यहाँ पे देखना क्या जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोवाइड किया है एंड जो हम जान पा रहे हैं क्या वो मैच कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो एक्चुअली में मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, राइट, उसको स्ट्रेंथन बनाता है, ठीक है, उसको बिल्डअप करता है, ठीक है। एंड जो भी जितने भी शेल बैंक्स होते हैं उसके साथ प्रोहिबिट करते हैं कि आपने कोई भी डीलिंग नहीं करनी है। एंड मोर ओवर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में और US गवर्नमेंट के बीच में, उसको इम्प्रूव किया जाता है सो डैट पब्लिक के पास ना पहुंचे, सो डैट कोई भी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होते हैं, जो भी क्रिमिनल पर्सनस होते हैं, उन तक किसी भी तरह से ये न्यूज़ ना जा सके या फिर प्रेस तक ना जा सके, ठीक है, जिससे कि वायलेंस ना क्रिएट हो जाए, राइट, कंट्री में। एंड नेक्स्ट वन इज इंटेलिजेंट रिफॉर्म एंड टेररिज्म प्रिवेंशन एक्ट। तो ये लास्ट है, ठीक है, USA के अंदर। तो इसके अंदर जो भी BSA के अंदर अमेंडमेंट हुई है वो अमेंडमेंट की गई है कि सो डैट वो जो भी क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर की जाती है फंडिंग की, वो उसकी रिपोर्ट्स यहाँ पे इस एक्ट के अंदर लानी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं यूनाइटेड किंगडम की तरफ। यूनाइटेड किंगडम ने किस तरह से यहाँ पे लॉज बनाए गए हैं। तो फर्स्ट वन इज द प्रोसीजर ऑफ क्राइम एक्ट अमेंडमेंट बाय द क्राइम एंड द कोर्ट एक्ट 2013 एंड द सीरियस क्राइम एक्ट 2015। यहाँ पे एक एक्ट लाया गया, ठीक है। अब AML एंड CFT के लिए यहाँ पे 3 लॉज लाए गए थे, ठीक है। सो फर्स्ट वन हमने पढ़ लिया, ठीक है, जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट माना गया है, ठीक है। एंड इस एक्ट के अंदर किस तरह से हमें ये पता लगाया जा सकता है कि क्रिमिनल प्रॉपर्टी को किस तरह से कंसील किया जा रहा है, किस तरह से उसको एक्वायर करते हैं, ये सब चीज़ें क्या है मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस के अंदर क्रिएट की जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज द मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन 2007। सो मनी लॉन्ड्रिंग 2007 के अंदर क्या बोला गया है कि एक मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन मतलब उसके लिए रेगुलेशंस यहाँ पे लाई गई हैं, जो भी नॉन फाइनेंशियल प्रोवाइड की जाती है, जैसे ऑडिटर्स, इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, टैक्स एडवाइजर्स, लीगल प्रोफेशनल्स, ट्रस्ट कंपनी सर्विसेज प्रोवाइडर्स, स्टेट एजेंट्स या हाई वैल्यू डीलर्स या कैसीनोज, इनको जो भी जो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनके ऊपर ये रेगुलेशंस अप्लाई होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द टेररिज्म एक्ट। तो टेररिज्म एक्ट 2000 के अंदर एप्लीकेबल हुआ था, ठीक है। एक ये परमानेंट एक्ट है, जो भी टेररिज्म एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जो टेररिज्म रिलेटेड जो भी देखो ये टेररिज्म का पर्पस है, ठीक है। तो इस
पर्पस के लिए जो भी फंडिंग रेज होता है ये कहाँ पे है, जो भी ट्रेनिंग की जाती है, जो भी फायर आर्म्स है, ठीक है, एंड टेररिज्म पर्पस है, उन सबको ये डिमोलिश करता है, ठीक है, ये सबको यहाँ पे ढूंढ के डिमोलिश करता है। ये एक परमानेंट लॉ बनाया गया है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, राइट? सो नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी काफ़ी सारे यहाँ पे लॉज बनाए गए हैं। सो फर्स्ट वन इज इंडिया हैज़ पुट प्लेस 2006 के अंदर AML एंड CFT के लिए यहाँ पे लॉज बनाए गए थे, ठीक है। इसके अंदर 5 ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे कि इनरोलमेंट विद द ऑस्ट्रेक एंड CFT एंड AML प्रोग्राम को यहाँ पे लेके आना, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करना, रिपोर्टिंग करना, देन रिपोर्टिंग करने के बाद रिकॉर्ड्स को अपने पास रखना, ठीक है। तो ये सब 5 ऑब्लिगेशंस किसके अंदर आते हैं? ऑस्ट्रेलिया के लॉज के अंदर दिखाए गए हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि यूके के लिए कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं, जो कि 3 थे, ठीक है, एंड USA के लिए कौन कौन से हैं, एंड यूरोप के लिए एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। सो यहाँ तक हमारी आज की क्लास यहाँ तक हमने 3rd चैप्टर किया, एंड नेक्स्ट हम करने वाले हैं AML एंड CFT लेजिस्लेशन इन इंडिया। पहले हमने पढ़ा था कि कंट्रीज के अंदर किस तरह से लेजिस्लेशन बनाई गई है, अब इंडिया के अंदर किस तरह से लेजिस्लेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सो आपको पता ही होगा कि जो इंडिया के अंदर है वो PML एक्ट यहाँ पे पास किया गया, जैसे जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। अमेंडमेंट इसकी हुई थी 2005 के अंदर, ठीक है। तो इसको अब जो बोला जाता है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2005 बोला जाता है, एंड एक और यहाँ पे एक्ट पास किया गया था जिसको बोला जाता है अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 1967, ठीक है। अब ये दोनों क्या काम करते हैं? ये दोनों क्या करते हैं? इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ अमेंडमेंट की जाती, इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ मेजर्स करते हैं किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को बचाना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा हर बैंक्स के लिए रेगुलेटरी बॉडी, जैसे RBI बॉडी है, ठीक है, स्टॉक मार्केट के लिए SEBI है, एंड इंश्योरेंस कंपनीज के लिए IRDA है, ठीक है। सो इसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी यहाँ पे लाया गया है, सो डैट वो मनी लॉन्ड्रिंग को क्या कर सके, क्या बोलते हैं, कम कर सकें, एंड उसके लिए MLCT यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। जैसे RBI होता है बैंक्स के लिए, ठीक है, उसी तरह से MLCT यहाँ पे लाया गया है, राइट। सो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में से जो वेटेज रहती है क्वेश्चंस की वो इस पैराग्राफ से आ सकता है, ठीक है, इस टॉपिक से आ सकता है, दैट इज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो ये क्यों बनाया गया, ठीक है, ये क्यों बनाया गया? देखो 2000 में इसको इनेक्ट किया गया, इसकी अमेंडमेंट 3 बार हुई, 2005 के अंदर, 2009 के अंदर एंड 2012 के अंदर, ठीक है। काफ़ी सारी प्रोविजन इसमें ऐड होती गई, ठीक है, अमेंडमेंट्स होते गए, राइट। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया के अंदर हो रही है उसको क्रिमिनलाइज करना, उसको रोकना एंड कंट्रोल करना, ठीक है। किस तरह से हम रोक सकते हैं, किस तरह से हम बचा सकते हैं इंडिया को मनी लॉन्ड्रिंग से, ये सब चीज़ें इस एक्ट के अंदर देखी जाती है, ठीक है। एंड जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं या फिर एसेट्स होते हैं उसको सीज करता है, उसको जब्त कर लेता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 तरह के प्रोविजंस होते हैं। कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं? फर्स्ट वन इज रिलेटिंग टू मेंटेनेंस एंड सबमिशंस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द रिपोर्टिंग एंटिटीज। रिपोर्टिंग एंटिटीज क्या होती है फर्दर हम नीचे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे हमने डिस्कस करेंगे, राइट। सो रिपोर्टिंग एंटिटीज जो है FIU इंडिया के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड करी, यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, सबमिट करती हैं इन्फॉर्मेशन, उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है, किस तरह से सबमिट करना है ये भी इस एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है, ठीक है। एंड मोर ओवर जो भी इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं इस केस को लेके, ठीक है, उनकी सर्च करना, उनकी प्रोसिक्यूशन करना, ठीक है, एविडेंस को कलेक्ट करना, ये सब चीज़ें भी इस एक्ट के अंदर इंक्लूड आती हैं, ठीक है। एंड PML ये भी बताता है कि अगर आप किसी भी तरह से यहाँ पे गलती हो जाती है तो 3 से 7 साल तक यहाँ पे इम्प्रिजमेंट होती है, ठीक है। अब अंडर दिस वेरियस बिजनेसेस, ठीक है, जैसे कि बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड या फिर किसी भी तरह फाइनेंशियल बिजनेस हो गए, ये सब के सब यहाँ पे कवर किए जाते हैं। अगर इन सब कोई भी इन सब में से मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, ठीक है, वो सब भी यहाँ पे पनिश किए जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अमेंडमेंट कब की गई थी? सबसे पहले आपको ऑलरेडी बता दिया था 2005 के अंदर, पहले 2005 के अंदर, फिर 9 एंड देन 12 या 13 के अंदर किया गया था, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए थे PML के वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अमेंडमेंट जो हुआ था वो उसकी डेफिनेशन में ही हुआ था, जिसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस, ठीक है। सबसे पहले जो देखो अब डेफिनेशन क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? पहले एक छोटा सा मतलब होता था, ठीक है, अब उसको एक्सपैंड कर दिया गया है, ठीक है। तो डेफिनेशन में ही अमेंडमेंट्स लेके आई है ये। पहले मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब था कि जो भी इलीगल सोर्सेज से पैसे आ रहे हैं और लीगल सोर्सेज में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, दैट इज नॉन एज अ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है।
अब मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ये भी डेफिनेशन में कंसीडर किया गया है कि उसकी कंसीलमेंट, वो कहाँ से आ रहा है, कौन उसको प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, एक्वायर किस तरह से कर रहा है, एंड उस फंड्स को कौन यूज़ कर रहा है, किस तरह से यूज़ कर रहा है, वो में मनी लॉन्ड्रिंग डेफिनेशन, मनी लॉन्ड्रिंग के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। अब उसकी पनिशमेंट में भी अमेंडमेंट्स लेके आई गई है कि अब प्रपोर्शनेट देखना है, किस प्रपोर्शनेट में उसने काम किया है, तो उसके हिसाब से ही उसको पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज रिमूविंग मॉनेटरी थ्रेशोल्ड फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग द ऑफेंस। तो यहाँ पे बोला गया है, पहले एक सीलिंग होती थी, ठीक है, पहले यहाँ पे सीलिंग होती थी कि इतने से, अगर इतने से ज़्यादा उसको अगर ये काम करता है तो इतने ज़्यादा, इतने तक उसको यहाँ पे फाइन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा अब कुछ भी नहीं, सारे मॉनेटरी थ्रेशोल्ड हैं उसको रिमूव कर दिया गया है, राइट। सो नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथनिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज़। अब यहाँ पे जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं उसके ऊपर जो ऑब्लिगेशंस लगाई गई थी उसको स्ट्रेंथन करता है। तो सेक्शन 12 के अंदर स्पेसिफाई किया गया है जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ के ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, उसके बारे में कि किस तरह से रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, ठीक है, एंड किस तरह से FIU इंडिया को किस तरह से वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स की, वो भी इसके अंदर बताई गई, ठीक है। रिपोर्टिंग एंटिटीज़ क्या होती है वो हम आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एडिशनल फाइनेंशियल सेक्टर्स एंटिटीज़ अंडर PMLA। तो कुछ ऐसे फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, ठीक है, जो PMLA के अंदर डाला गया। अब देखो काफ़ी सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स होती हैं, जैसे कि लेट्स सपोज कि सिर्फ बैंक्स हो सकते हैं, पेमेंट बैंक्स, ठीक है, ये सब बैंक्स, लेकिन कुछ और फाइनेंशियल सेक्टर्स भी ऐड किए गए हैं अमेंडमेंट्स के अंदर, जैसे कि एंटिटीज रेगुलेटेड बाय द फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, ठीक है, जिसको कमोडिटी एक्सचेंजेस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मेंबर्स ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज, एंटिटीज रेगुलेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, जिसको पेंशन फंड्स प्रोवाइड करता है, राइट। एंड जो IRDA होते हैं वो भी इसके अंदर आ सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट भी आ सकता है, जैसे बोला जाता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, एंड इंडिया पोस्ट आ सकती हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो अमेंडमेंट की गई है वो कौन सी है, क्रिप्टो करेंसी इंटरमीडिएट जो भी कंपनीज है वो 2003 के अंदर ऐड हो जाएंगी, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल, जो भी दूसरे फाइनेंशियल बिजनेसेस हैं, ठीक है, जो नॉन फाइनेंशियल होते हैं बिजनेसेस और जो प्रोफेशनल होते हैं उनको भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है, जैसे कि रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, रियल एस्टेट एजेंट्स, डीलर्स इन प्रीशियस मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड हाई और अदर हाई वैल्यू गुड्स, एंड पर्सन जो भी एंगेज होते हैं सेफ कीपिंग के अंदर कैश को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है, लिक्विड सिक्योरिटीज को अपने भी अपने पास रखते हैं, ठीक है, उन सबको यहाँ पे एज अ नॉन फाइनेंशियल बिजनेस के अंदर कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज मेजर्स फॉर इफेक्टिव कंप्लायंस। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे इफेक्टिव कंप्लायंस लाए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे FIU को और ज़्यादा पावर दे दिया गया है, ठीक है, जिसमें जो FIU का डायरेक्टर है, ठीक है, वो ही सारे जितने भी, जैसे उसने बोल दिया कि मुझे इस ट्रांजेक्शन का रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, अभी के भी रिकॉर्ड चाहिए, तो वो लाके दे सकते हैं, ठीक है। जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं उनको कॉन्फिडेंशली रखनी है, जो भी अगर FIU रिक्वेस्ट करती है, ठीक है, या जो भी उनके ऊपर इम्पोजिशन लगाई जाती है FIU के थ्रू, तो वो उन्होंने कॉन्फिडेंशियल अपने पास रखना है। एंड जो भी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होगा, ठीक है, एंड एनी ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटीज रेज सेंशन आर द वाइडर, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज होंगे रिपोर्टिंग एंटिटीज के या फिर जो डायरेक्टर होगा वो यहाँ पे वाइडर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम द सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजिंग। यहाँ पे जो भी क्रिमिनल प्रोसीजिंग होती है या फिर सिविल होता है उससे प्रोटेक्ट करना, ठीक है, जो भी डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ के, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है क्रिमिनल एंड सिविल लाइबिलिटी से, ठीक है, जो भी अगर वो डिस्क्लोज करते हैं इंफॉर्मेशन टू द FIU या फिर FIU इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट वन ऐसी कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो कि इन्फोर्समेंट के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, जैसे IRDA ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। जो इंश्योरेंस कंपनी एक्ट, जो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट्स। पेंशन फंड रेगुलेटरी, जो पेंशन फंड्स को रेगुलेट करती हैं वो भी यहाँ पे अथॉरिटी आती हैं, ठीक है। रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार यहाँ पे आता है, ठीक है। रजिस्टरिंग अथॉरिटी empowered to register motor vehicles, recognize stock exchange, the Institute of Chartered Account of India जिसको ICAI बोला जाता है, ICWAI जिसको बोला जाता है जिसको बोला जाता है the Institute of Cost and Works Accountants of the India, and next one is ICSI that is in the Institute of Company Secretaries of the India, ये भी इंक्लूड किए जाते हैं अंडर द एनफोर्समेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज नाउ रिपोर्टिंग एंटिटीज। हमने काफ़ी बार इस वर्ड्स को सुना है, ठीक है, इसको काफ़ी बार इसको पढ़ चुके हैं, तो अब ये क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज रिपोर्टिंग एंटिटीज।
एंटिटी इज व्हाट, कि कोई भी बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी जो कि बैंक की फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि बैंक कंपनी भी हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, एंड कोई भी पर्सन, ठीक है, जो इस काम को कर रहा हो यानी कि रिपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशंस देख लेते हैं, जो कि जो बैंक की फाइनेंशियल, जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, या कोई भी इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है, वो इस एक्ट के अंदर फॉलो किए जाते हैं इन द सेक्शन ऑफ 12 एंड 13 ऑफ दिस एक्ट, राइट। सो यहाँ पे उनका काम क्या होता है, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना 5 सालों तक, ठीक है, एंड रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टर के पास पहुंचाना है, डायरेक्टर किसके, एफआईयू के पास। अब देखो जितने भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स होते हैं या कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, वो डायरेक्ट कहाँ पे जाते हैं, एफआईयू के पास जाते हैं, ठीक है। जो ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट्स है जो कि इसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, उनके नेचर को स्पेसिफाई करता है, राइट। एंड कस्टमर्स को टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर। अब कस्टमर की आइडेंटिटी क्या है उसको वेरीफाई करना, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है एंड जो कस्टमर है उन दोनों को मैच करना, आइडेंटिफाई करना कि या वो ये वही कस्टमर है जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, जिससे हमें सस्पिशियस हो रहा है, ठीक है, जिससे हमें डाउट हो रहा है, राइट। एंड जो भी एंटिटी डॉक्यूमेंट्स है उसको उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना, ठीक है, ये भी किसका काम होता है, रिपोर्टिंग एंटिटीज का काम होता है, ठीक है, क्योंकि वो रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ मेंटेन करके रखेंगे अपने पास कम से कम 5 साल तक, ठीक है, जब तक रिलेशनशिप उनका एंड नहीं हो जाता बैंक्स और कस्टमर्स, राइट। एंड ये इन्फॉर्मेशन को गैदर जब भी करते हैं तो ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि सबको बता बता के करें, राइट। सो ये दैट वाज ऑल अबाउट द रेगुलेटरी एंटिटीज, राइट। सो नेक्स्ट वन इज करेक्टिव एक्शंस फॉर द नॉन कंप्लायंस। अब नॉन कंप्लायंस के लिए कौन कौन से एक्शंस लिए जा सकते हैं। अगर कोई भी फेल हो जाता है इन ऑब्लिगेशंस को मानने के लिए, या कोई भी फेल हो जाता है इनको कोई भी फेल हो जाता है इनको फॉलो अप करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ करेक्टिव एक्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, सेक्शन 13 के अंदर कुछ ऐसे एक्शंस लिए गए हैं, ठीक है, अगेंस्ट एन एररिंग बैंक या पर्सन की, ठीक है। तो सबसे पहले उनको वार्निंग इशू करवाई जाएगी, ठीक है, उनके लिए एक रेमेडियल एक्शंस के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। देन उस एक्शन जो हमने पूछा गया है, जो जिसकी बात चल रही है, उसको डायरेक्टर के पास यहाँ पे रिपोर्ट भेजी जाएगी, जो कि एफआईयू के डायरेक्टर हैं, ठीक है। देन मॉनिटरी पेनल्टी उन पे लगती है ऑन द रिपोर्टिंग एंटिटी। अब देखो ये रिपोर्टिंग एंटिटीज ही होंगे, ठीक है, और द डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, जो भी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होगा है, एम्प्लॉय होगा, ठीक है, एंड उसके ऊपर पेनल्टी जो लगने वाली है वो मिनिमम कितनी रहती है, 10,000, एंड मैक्सिमम जो रहती है 10,000 से ज़्यादा, ठीक है, एक फेलियर के ऊपर, राइट। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो अब यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ऑफेंस यहाँ पे किस तरह से किया जाता है। सो सेक्शन 3 के अंदर, इस एक्ट के सेक्शन 13 के अंदर डिफाइन किया गया है जो भी मनी लॉन्ड्रिंग को ऑफेंस करेगा, ठीक है, जो भी ऑफेंस इन द सेंस कि जो भी पर्सन देखो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उसमें इंडल्ज हो जाता है, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो उनके लिए भी यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है, ठीक है। एंड मोर ओवर इट्स एक्चुअली इन्वॉल्व इन एनी प्रोसेस, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि कनेक्टेड होती है क्राइम के साथ, इंक्लूडिंग इन, जैसे कि वो किस तरह से कंसील किया जा रहा है, किस तरह से वो प्रोसेस में लेके आ रहा है, ठीक है। किसी को भी थोड़ा सा भी शक होता है कि ये, लेट्स सपोज कि ए पर्सन है, ए पर्सन क्या कर रहा है यहाँ पे, मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा है, ठीक है, बी पर्सन से एक पर्सन की यहाँ पे हेल्प मांग लेते हैं और बी पर्सन को ये चीज़ का पता ही नहीं होता, ठीक है। सो बी पर्सन से भी पूछताछ की जाएगी, ठीक है, बी पर्सन भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। सो ऑफेंस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यही होता है, राइट। सो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी जितनी भी होगी जो इन्वॉल्व होती है उस क्राइम के अंदर, उनको भी यहाँ पे सीज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग। अब जो भी ऑफेंस में आता है मनी लॉन्ड्रिंग के, उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट होगी। सो जिसने भी कमिट किया है मनी लॉन्ड्रिंग को ऑफेंस करने के लिए, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा तगड़ी यहाँ पे सजा होती है, इम्प्रिजमेंट मिली जाती है, ठीक है, जो कि 3 साल से कम की नहीं होती है, एंड इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं 7 साल तक, और शायद उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, राइट। सो नेक्स्ट वन इज अदर प्रोविजनल्स ऑफ द पीएमएलए। तो पीएमएलए की कौन कौन से और प्रोविजनल्स हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 5 के अंदर डिफाइन किए गए जितने भी प्रोविजनल्स हैं पीएमएलए के, पीएमएलए एक्ट के अंदर, पीएमएल के अंदर सेक्शन 5 के अंदर डिफाइन किए गए हैं। तो डायरेक्टर जो है वो इम्पावर करता है बाय द पीएमएलए टू अटैच। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज या जितने भी एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, तो उस प्रॉपर्टीज को फ्रीज किया जाता है, उनको जब्त किया जाता है, ठीक है। सो मोर ओवर ये बताता है कि जो भी ये जो एक्ट है, ठीक है, वो ये प्रोवाइड करता है फॉर द कमेटी ऑफ द केसेस, जो स्पेशल कोर्ट जैसे कि डीआरटी वगैरह हो गए, जो भी स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, अपील कर सकता है, ठीक है, अपील ट्रिब्यूनल टू द सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो अपनी यहाँ पे अपील कर सकता है। एंड पीएमएल ऑल्सो कंडक्ट प्रोविजंस फॉर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट विद अदर कंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ असिस्टेंस। तो वो दूसरी कंट्रीज के साथ वो हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर उन्होंने किसी भी तरह से दूसरी यहाँ की प्रॉपर्टी वहाँ बेची है या कैसे भी करके वो दूसरी कंट्री की हेल्प लेते हैं, तो वो भी यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। पीएमएल एम्पावर्स एन अथॉरिटी, जो कि
यहाँ पे एक अथॉरिटी के ऊपर पावर, यहाँ पे एम्पावर कर दी गई है कि डैड कोई भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन जहाँ से हमें सस्पेक्शंस भी मिलती है, ठीक है, जहाँ से हमें डाउट भी मिलता है, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें अंदर आता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। अब ये इसको PMLR बोला जाता है, PMLR बोला जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स विच वर मेड इफेक्टिव फ्रॉम द 1 July 2005, and these rules are significant for the banks in designing their procedure and system and putting in place appropriate organizational setup related to KYC and AML aspects। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जुलाई 2005 के अंदर यहाँ पे इसको इफेक्टिवली लेके आया था, लेकिन इसकी अमेंडमेंट जो हुई है वो 2015 के अंदर की गई थी। इसकी लास्ट अमेंडमेंट हुई है 2015 के अंदर, जिसमें बोला गया है जो कि रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो मेंटेन करके रखना होता है, जो भी किस तरह से वो प्रोसीजर किया गया है, जो भी सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से लेके आया गया, ये सब कुछ जो है वो उसका रिकॉर्ड होना ही चाहिए। एंड रिकॉर्ड का जो टाइम पीरियड है वो कम से कम 5 साल तक होना चाहिए। ये काफ़ी बार मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया CDD के लिए एंड जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसके लिए कितना यहाँ पे पीरियड रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं PMLR के अंदर। सो हेयर इज फर्स्ट वन की जो भी डेफिनेशन है उसको मॉडिफाई कर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस कर दिया गया है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस की यहाँ पे इनके ऊपर अमेंडमेंट्स की गई है कि इनके लिए भी रिकॉर्ड्स रखने ज़रूरी हैं, ठीक है। एंड डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स के लिए यहाँ पे डेफिनेशन की डेजिग्नेटेड डायरेक्टर एक्चुअली में कौन हो सकता है, ठीक है। न्यू रिपोर्ट्स एडिट कर दिए गए हैं, जैसे कि जो भी क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजेक्शंस होंगी या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के NGOs जो भी होंगी उनकी ट्रांजेक्शंस के भी रिपोर्ट इनको चाहिए ही होंगे। अगर उनकी रिपोर्ट से कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी मिलती है तो वो FIU के यहाँ पे सबमिट किया जाएगा, ठीक है। एंड अगर किसी भी तरह से काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट होती है तो उसकी भी फाइलिंग की जानी चाहिए, मंथ टू मंथ की जानी चाहिए। अगर किसी भी तरह से अगर डिले करते हो उस रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए तो उसके लिए भी आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे एडिशनल यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दी गए हैं, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए। तो सेलियन प्रोविजंस कौन कौन से हैं इस रूल्स के लिए वो हम पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहले आता है क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस। अब क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है, क्लाइंट के बारे में जानना, ठीक है। सो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या होता है क्लाइंट का, ठीक है, वो किस तरह से डील करता है, हर एक चीज़ यहाँ पे देखी जाती है, राइट। सो नेक्स्ट वन इज ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे अमेंडमेंट कर दी गई है कि पहले क्या होता था, सिर्फ 2-3 चीज़ें यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, जैसे इलेक्शन वोटर कार्ड जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, पैन कार्ड। लेकिन अब काफ़ी सारे 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट माना गया है, ठीक है। एंड सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री, सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री क्या होती है, तो ये कि यूनिक डिजिटल फॉर्म है, KYC आप समझ सकते हो, ठीक है, KYC। तो यहाँ पे KYC क्या होता है, लेट्स सपोज कि आपने सब कुछ सबमिट कर दिया, ठीक है, अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, फादर नेम, सब कुछ आपने सबमिट कर दिया, ठीक है। वो किस में है, फिजिकल फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको एक बार डेटा में डाल देते हैं, राइट। सो अब बैंक के साथ कस्टमर का काफ़ी बार रिलेशनशिप बनता है। बैंक एक बार डिपॉजिट करवा लेता है, कभी कभी वो लोन भी ले सकता है, ठीक है। काफ़ी सारे यहाँ पे उसके रिलेशनशिप बनते हैं उस बैंक के साथ, ठीक है। इस पार्ट को कंसीडर करते हुए यहाँ पे KYC को लाया गया। अब क्यों लेके आया गया, एक यहाँ पे पोर्टल होता है, ठीक है, जिसके अंदर उसकी फोटोग्राफ होती है कस्टमर्स की, ठीक है, एंड फादर्स नेम सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा होता है, पैन कार्ड सब कुछ, ठीक है। उसे बार बार यहाँ पे डिटेल फिल नहीं करनी पड़ेगी फॉर KYC प्रोसीजर के लिए, ठीक है। उसको एक ही बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाता है एंड बार बार उसी को ये दिखाता रहता है, ठीक है। एक चेंज जब यहाँ पे लो रिस्क के लिए हर 10 साल में इसको चेंज किया जाएगा, ठीक है, हाई रिस्क के लिए हर 2 साल में इसको चेंज किया जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। अब रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, तो FIU के लिए, ठीक है, FIU को जब भी आप रिपोर्ट सेंड करते हो तो पीरियोडिकल यहाँ पे होती है, ठीक है। आपने कितने कितने टाइम पे उनको रिपोर्ट्स इनके लिए, CTR के लिए अलग से टाइम होता है, STR के लिए अलग से टाइम होता है, आपको ज़्यादा डीपली जाने की नीड नहीं है, ठीक है। तो CTR जो है हर महीने के अगले 15 दिन तक आपको CTR को सबमिट करना ही करना होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज रिकॉर्ड कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे रिकॉर्ड्स वैसी रखनी है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी, विदाउट इन्फॉर्मेशन आपने वो रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करके रखनी है, राइट। तो नेक्स्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट्स। अब क्लाइंट्स की आइडेंटिटी क्या है एंड ट्रांजेक्शन की आइडेंटिटी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका वैल्यू क्या है, पर्पस क्या है, ये सब आपने मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है। एंड डेजिग्नेटेड डायरेक्टर जो कि उस बैंक का होल टाइम डायरेक्टर होगा, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो कि
रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर इंश्योरिंग दैट द बैंक फुलफिल द ऑब्लिगेशन, वही इंश्योर करेगा कि इस बैंक ने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल किया है कि नहीं किया है। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल ऑफिस क्या होता ऑफिसर क्या होता है? सो बैंक के थ्रू एक प्रिंसिपल ऑफिसर को यहाँ पे डेजिग्नेट किया जाता है एंड इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग टाइमली सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट्स इन्फॉर्मेशन टू द FIU इंडिया। ठीक है, वो FIU इंडिया को यहाँ पे टाइमली सबमिट करता ही रहता है। ठीक है, वो बैंक के थ्रू होता है। ठीक है, बैंक यहाँ पे बैंक को अगर कोई भी किसी भी तरह से CTR मिला या सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट मिलती है तो वो पहले प्रिंसिपल ऑफिसर के पास जाएगा, प्रिंसिपल ऑफिसर आगे FIU को यहाँ पे सेंड करता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्मॉल अकाउंट के लिए अलग से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लाई गई हैं। देखो पहले क्या होता है, KYC यहाँ पे नहीं, अगर किसी के पास भी KYC वो नहीं फुलफिल करता है तो वो क्या करता है, स्मॉल अकाउंट ओपन करवा लेता है। ठीक है, तो स्मॉल अकाउंट के लिए, स्मॉल बैंक अकाउंट के लिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लाई गई हैं। ठीक है, तो PML रूल्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ द, जो RBI की गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे ही PMLR रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1976 के अंदर बनाया गया था। पहले हमने PMLA के बारे में बात की, अब हम दूसरे एक्ट के बारे में बात करेंगे जो अनलॉफुल, जो लॉ के खिलाफ होते हैं। ठीक है, लॉ के खिलाफ वाली जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो इसके अंदर कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, पहले ये कब बना था, 1967 के अंदर, उसके बाद इसको अमेंड किया गया 2008 के अंदर। ठीक है, टू इंक्लूड लेजिस्लेटिव मेजर्स फॉर द CFTs, राइट। एंड ये क्या करता है, जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, कहाँ से उसके फंड्स को रेज किया जा रहा है, ठीक है, किस तरह से उसकी कंसीलमेंट हो रही है, पोसेशन में लेके आया जा रहा है, एक्वायर करें, ये सब UAPA के अंदर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, एंड मोर ओवर किस तरह से उसकी रेजिंग कर रहे हैं एंड जो भी प्रॉपर्टीज या एसेट्स उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं उनको सीज किया जाता है, जो भी कनेक्ट होते हैं टेररिस्ट के साथ। ठीक है, वेपन्स एंड ऑल। ठीक है, जो भी वहाँ पे जगह होती है, प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे बन रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पे सीज किया जाता है। तो लास्ट इसकी जो अमेंडमेंट हुई थी वो Feb 2013 के अंदर हुई थी। ठीक है, जिसके अंदर वो सारे के सारे FATF के स्टैंडर्ड्स को मीटअप करता है। ठीक है, FATF इज व्हाट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज ऑफेंस ऑफ रेजिंग फंड्स फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके अंदर सेक्शन 40 के अंदर, UAPA के जो सेक्शन 40 है उसके अंदर ये बताया गया कि जो भी ऑफेंस होता है, ठीक है, जो भी रेज करता है फंड्स को फॉर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए क्या क्या यहाँ पे पनिशमेंट लाई गई है। ठीक है, सो 14 ईयर से ज़्यादा की इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है एंड साथ साथ उनको फाइन भी लगता है इस केस में। ठीक है, या फिर दोनों ही उनको लगते हैं, राइट। तो अगर जो भी एंटिटीज़ उनके साथ अटैच होती है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी उनके साथ अटैच होती है तो उसको फ्रीज किया जाता है, राइट। सो सेक्शन 51A के अंदर ये बताया गया है कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करता है या कॉपिंग करता है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उनके सारे फंड्स को उनको सारे फंड्स को फ्रीज करती है, सीज करती है। ठीक है, एंड जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उनको भी ये सीज करना शुरू कर देती है। ठीक है, एंड मोर ओवर कोई भी एंटिटीज़ या फिर कोई भी इंडिविजुअल जो उनका साथ दे रही है और उनके फंड्स को और बढ़ा रही है तो उनको भी यहाँ पे पकड़ लेते हैं। ठीक है, सो नीचे चलते हैं RBI गाइडलाइंस की तरफ। तो RBI गाइडलाइंस यहाँ पे क्या कह रही है, तो PMLA यहाँ पे डिफाइन करता है सेक्शन सबसेक्शन FA के अंदर कि रेगुलेटर क्या होता है। यस, एनी आइडिया रेगुलेटर क्या होता है? रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, दैट इट इज़ अ पर्सन या फिर कोई भी अथॉरिटी या फिर कोई गवर्नमेंट जो कि अपने हिसाब से पावर देती है, ठीक है, लाइसेंस प्रोवाइड करती है अपने पावर की एंड ऑथोराइज करती है, रजिस्टर करती है, रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है उस एक्टिविटीज़ को जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ होती हैं या फिर जो भी डायरेक्टर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेगुलेट करना। ठीक है, अपने लाइसेंस प्रोवाइड करना, अपनी पावर प्रोवाइड करना। ठीक है, सो द एक्ट प्रोवाइड्स रेगुलेटर शेल, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकती है रेगुलेटरी जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ होती है। ठीक है, रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुकी, जो रिपोर्ट करती है, कोई भी बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं या फिर कोई भी यहाँ पे पर्सन या इंडिविजुअल हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि क्लाइंट इन्फॉर्मेशन क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, रिस्क असेसमेंट कितनी हो सकती है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देखी जाती है। इज इट क्लियर? तो RBI गाइडलाइंस यहाँ पे क्या कहती है, ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ। ठीक है, डेफिनेशंस क्या होती हैं, नो योर कस्टमर्स की, KYC पॉलिसी क्या है, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी एंड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, ये सब क्या होती है। इसको फर्दर हम डिटेल में KYC वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको बस आप इतना जान लीजिए कि RBI गाइडलाइंस इन सब के लिए एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। ठीक है, KYC क्या होता है, यस, AML के आप AML एंड CFT के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो KYC के बारे में भी RBI की गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। ठीक है,
सो यहाँ पे काफ़ी सारे लिखे गए कि किस किस चीज़ के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए, कॉरेस्पॉन्डेंस बैंकिंग एंड शेल बैंक्स के लिए, वायर ट्रांसफर्स के लिए, मेंटेनेंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द KYC डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन पीरियड, ठीक है, कंपैक्टिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, जर्नल गाइडलाइंस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, इन सब के लिए वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज IBA। IBA इज व्हाट, इंडियन बैंक एसोसिएशन, तो वो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो भी जिस एरिया में उसको लगता है कि यहाँ पे KYC एंड AML होनी चाहिए, तो उसके लिए RBI यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव किसको देता है, IBA के लिए देता है, ठीक है, कि आप अपने बैंक्स को संभालो, अपने बैंक्स के लिए कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस प्रोवाइड करो, ठीक है। सो RBI एडवाइस करता है बैंक्स को कि कुछ गाइडलाइंस अपनी तरफ से भी आप रखो, ठीक है। तो इसके लिए वो नो योर कस्टमर्स के लिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड रिपोर्टिंग ऑफ द IBA वर्किंग ग्रुप और ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस ऑफ द बैंक, ये सब के सब क्या है, यहाँ पे रिपोर्ट्स प्रोवाइड करी गई हैं, ठीक है। इन सबको इतना डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है, जस्ट आपको इतना याद रखना कि IBA भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है अपने अपने बैंक्स, सॉरी सारे बैंक्स के लिए, ठीक है। देखो RBI IBA को बोलेगा एंड IBA क्या करेगा, कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा फॉर ऑल द बैंक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। So if you want to enroll AML and KYC course from learning session, then you have to download Android application from Google Play Store, which is IIBF Learning Center app. And if you are iOS user, then you have to download My Institute app and use the organization code, which is GEGKT, as you can see on the screen. And you can also join our Telegram channel. So in this channel you will be getting latest updates and latest notification regarding all the certification course, and yes, you will be getting questionnaire in the form of polls and free ePDF notes which is complimentary given by us. You just have to join our Telegram channel. So here is exciting offer which is at 82% off on our all listed pack. Just you have to apply coupon code exams as you can see on the screen. So guys, don't miss the chance, just grab the opportunity to enroll the KYC and AML course. So after enrollment of KYC and AML course from learning session, the premium member will be getting mock test conceptual videos according to the latest syllabus, recorded live lectures, full course videos in Hindi and English mixed language, and yes, free ePDF notes complimentary given by us. To access them, you just have to join our Telegram channel. So the link of the app and the Telegram channel is in the description box below. Do check it now. And if you have any query and doubts related to course details, you just have to contact us. Number आपको description box में मिल जाएगा. And moreover, you can also visit our website, which is iibf.info. And if you are new on our channel, then do subscribe our channel and don't forget to press the bell notification icon for upcoming new video. Thank you so much. See you on other side.